Question number 4 of the textbook. So I will revise you, right? The points that we understood in the previous lecture. First, if there is a deed, then we will follow the deed. But if there is no deed, we will follow the Indian Partnership Act 1932. And according to Indian Partnership Act 1932, in the absence of deed, no partner is entitled to interest on capital. No partner is entitled to salary or commission. Partner is entitled to loan, interest on his loan at the rate of 6% per annum. Thereafter, right, firm cannot charge interest on drawings of the partner, and the partners will be treated as equal partners. ठीक है? सो अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी. दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस एट द रेट ऑफ, राइट, इक्वल पार्टनर्स. दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली. एंड द लास्ट, अगर उनका उन्होंने कुछ लोन वगैरह दिया है फर्म को, तो उस पे उनको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. एंड इवन फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स. ठीक है? नाउ question number 4. Sun and Moon were the partners with a capital of 10 lakhs and 5 lakhs respectively. They agreed to share the profits in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of the partners in both the cases when capitals are fluctuating and the capitals are fixed. They also introduced additional capital of rupees 2,25,000 and 1,50,000. They are not given me the dates of the addition. They are not given me the dates of the addition of the capital. Generally, I assume if dates of additions are not given, right, I will assume that they have been added on the first day. देखते क्या है? Interest on capital 5%, 5%. Drawings during that year is 22,500 and 15,000. They have also not given you the dates of drawings. Interest on drawings, they have given you the amount, so they have calculated it for you 1,350,900. Salaries, commission, and they have also given you share of the profits. मतलब इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो एक्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी सब आपको क्वेश्चन में दिया है. लेट्स सी. सो लेट्स फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of interest on capital. अच्छा, sun and moon. On opening capital. राइट, 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा. So they have given you opening capital 10 lakhs and 5 lakhs. So 10 lakhs पे and 5 lakhs पे at the rate of 5% for the year, obviously. So it will be 10 lakhs का 10% आता है 1 lakh. मुझे 5% चाहिए, हाफ 50,000. एंड 5 lakhs का 10% आएगा 50,000. मुझे 5% चाहिए 25,000. ऐड हो जाएगा ऑन एडिशनल कैपिटल.
Have they given me the dates of addition? No, they have not given me the dates of addition. So let me check वो के लोग उनका assumption क्या होता है. Let me check. Okay, they assume it at the mid of the year. Okay, so I will also assume it is at the mid. If आगे से हमारा एक standard assumption रहेगा, if dates of additional capital are not given, we will calculate interest for 6 months. ये assumption है, because last year तक हम उसको पूरे साल का निकालते थे, यहाँ पे उन्होंने 6 months का निकाला है. ऐसे उन्होंने कहा कुछ लिखा भी नहीं है, लिखा है कुछ अलग से क्वेश्चन में. They also introduce additional capital, बस they are not given you dates. So there is no hard and fast logic. Generally we assume it is for the 12 months. तो एक हमारा assumption रहेगा, if dates of additional capitals are not given, we will calculate interest for 6 months. जैसे drawings के केस में जब interest on drawings निकालना होता है, if dates are not given, we calculate for 6 months. On similar basis, interest on capital के time, if they are not given you dates of addition, तो हम 6 months के लिए निकालेंगे. ठीक है. लास्ट ईयर यही क्वेश्चन हम 12 मंथ्स के हिसाब से करते थे. सम स्टूडेंट आस्क मी यस्टरडे, सो मैंने बोला था चेक करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच. ठीक है, चलो उन्होंने 6 मंथ्स का लिया तो हम भी 6 मंथ्स के हिसाब से करेंगे. एजम्पशन एट द एंड ऑफ द डे. ऐसे अगर डेट दी होती तो हम डेट वाइज कैलकुलेट करते. दे हैव नॉट गिवन यू डेट्स. सो 2,25,000 एंड 1,50,000. At the rate of 5%, not for the year but half year. So 2,25,000 का 10% आता है. मैं कैसे निकाल रहा हूं ध्यान देना. 2,25,000 का 10% आता है आपका राइट 22,500. इट इज 22,500. 10% आएगा. मुझे 5% चाहिए. 22,500 का आएगा 11,250. 5% 11,250 आएगा. मुझे 6 मंथ्स का चाहिए तो मुझे और हाफ करना होगा. 11,250 को अगर मैं हाफ करने जाता हूं तो 10,000 का हाफ 5,000. ठीक है, 1,000 का 500. सो 5,600 तो आ जाएगा. एंड कितना था वो मेरा 22,500. 10% है उसका हाफ 11,250. अच्छा 250 का हाफ 125 आएगा. सो इट विल बी मेरे हिसाब से 5,600 725. 22,500 का इसका 10% आता है 22,500. हमें हाफ चाहिए बिकॉज 5% है. मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे हिसाब से 11,250 आएगा. मुझे 6 मंथ्स का चाहिए तो मुझे इसको भी हाफ करना होगा. सो दिस विल बी 5 1 कैरीड 625. अच्छा 5,625. 5,625. अगर ओरली ट्राई करोगे तो आ जाएगा. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. नहीं तो आपके यू नो हाउ टू कैलकुलेट मैथमेटिकली, आप वो भी कर सकते हो. आई जनरली मैं मेरे तरीके से करता हूँ. लाइक अब मुझे 1,50,000 का 5% फॉर 6 मंथ्स निकालना है. मैं 1,50,000 का 10% निकालता हूँ. ओरली बात है 15,000. मुझे हाफ चाहिए. 15,000 का हाफ 7,500. ये 5% फॉर द ईयर आ जाएगा. मुझे उस 6 मंथ्स का चाहिए तो 15,000 उसका हाफ 7,500 था. उसका भी हाफ 7,500 का हाफ. आप ऐसे कर सकते हो. 8,000 का हाफ करो 4,000 एंड आपने 500 एक्स्ट्रा लिया था उसका हाफ माइनस करो. इट विल बी 3750. चेक करो बराबर है या रॉन्ग है. 3750. इट्स नॉट कि आप हमेशा कैलकुलेट करते बैठो. ओरली भी आंसर आ जाते हैं. ओरली भी आंसर आ जाते हैं. ठीक है. सो इट इज 56,000 sorry 55,625. 625 एंड यहाँ पे आएगा 28,750.
These are my interest on capital. I think someone has asked me the question. The question is, what difference will be there if we take 12 months and 6 months on interest will change. 12 months का interest obviously ज़्यादा रहेगा than the 6 months. So interest on capital will change, and therefore your capital balance will change. Capital balance will be more if you take for the 12 months because आप interest on capital ज़्यादा लोगे. ज़्यादा capital में 6 months का interest से 12 month का interest कभी भी ज़्यादा रहेगा. This is common sense. So उतना हम capital में add करेंगे तो capital balance will seem to be more. ठीक है, आगे. Second, so capital account under fixed capital method. Capital accounts under fixed capital method. Let's start. Capital accounts under fixed capital method. So it is, there will be two accounts of every partner. One is capital account which does not change except in case of additional capital. The balance is same. इसमें खाली एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है एडिशनल कैपिटल का. ऑल अदर ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते. टू पार्टनर्स, तो मैं यहाँ पे दो पार्टनर्स का कैपिटल निकाल रहा हूं. और फॉर एवरी पार्टनर देयर विल बी करंट अकाउंट. Obviously current account will require more space. देखते हैं. So this is a current account because current account में you will record all other transactions. कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हो? कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल बस, एंड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट. सो सन एंड मून. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दे हैव गिवन यू ओपनिंग कैपिटल्स आर 10 lakhs and 5 lakhs. कैपिटल के क्रेडिट पे, कैपिटल से क्रेडिट इसलिए क्रेडिट पे लिख रहा हूं. 5 lakhs, 10 lakhs and 5 lakhs. अच्छा, ये 10 lakhs है. And 5 lakhs. Next, उसके बाद they have brought additional capital of 2,25,000 and 1,50,000. कैपिटल एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट करो बाय कैश. 2,25,000 and 1,50,000. So cash will increase, cash or bank balance will increase and capital will increase. Therefore you will get closing balance. बस इतने transactions रिकॉर्ड होंगे. Yes, capital has changed, but it is just because of additional capital. 12 lakhs 25,000 and इसका है 6,50,000. इसका है 6,50,000. Next, current account by balance brought down. By balance brought down देखते हैं. हाँ, they have given you some interest on capital. Let me check. 5% था जो हम राइट. कोई आपको ओपनिंग करंट अकाउंट है क्या? नहीं. ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट में? नहीं. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, हमने ढूंढा है 55,625 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 55,625 and
28,750. ठीक है. सो दीज आर द राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल में ऐड होगा. अब कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट में ऐड करेंगे बिकॉज हमारे पास करंट अकाउंट है. उसके बाद यस डन. ड्रॉइंग्स कैपिटल से या करंट अकाउंट से माइनस होगा. अब यहाँ पे हम करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे 22,500 एंड 15,000 and 15,000. Drawings will decrease the current account balance. 2 drawings. आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट. ये हमारा इनकम रहता है, फर्म का इनकम रहता है और हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से माइनस करते हैं, उनसे रिकवर करते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देते हैं तो उनके कैपिटल करंट अकाउंट में ऐड होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेते हैं, उनसे रिकवर करते हैं. समझ में आ रहा है. इसलिए हम उनको डेबिट करते हैं. सो कितना डेबिट होने वाला है 1350 एंड 900. 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है. देन हमें पार्टनर से रिकवर करना है इसलिए पार्टनर को डेबिट करते हैं. कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे ऑलरेडी गिवन यू 1350 900. उनसे लेंगे, उनको डेबिट करेंगे, उनका करंट अकाउंट का बैलेंस कम कर देंगे 1350 एंड 900. नेक्स्ट फिर सैलरीज. सैलरीज हमें उनको देनी होती है, ये हमारा एक्सपेंस रहेगा और हम उनको देंगे पीएनएल के डेबिट में एंड कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट पे. अब यहाँ पे करंट अकाउंट में डालना होगा. सन को देनी है 15,000 की सैलरी बाय सैलरी. सन को 15,000 की सैलरी देंगे. आगे उनको कमीशन भी देनी है. सन को 7,500, मून को 5,250 बाय कमीशन. ये भी एक्सपेंस होगा, पीएनएल को डेबिट होगा. क्या बोला ध्यान देना. सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. पीएनएल को डेबिट होगा और हम उनको देंगे. सैलरी की वजह से, कमीशन की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, प्रॉफिट्स की वजह से उनके कैपिटल इंक्रीज होते हैं, इसलिए कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट कमीशन डन. यस. शेयर इन द लॉस. ये लॉस में शेयर है. लॉसेस डिक्रीजेस कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस, तो डेबिट किया जाएगा. 45,000 30,000 किसमें, कैपिटल में मत डालो, करंट में डालो. 2 नेट लॉस. पीएनएल में लॉस दिखाया होगा तो उनको झेलना पड़ेगा 45,000 एंड 30,000. ठीक है. आगे डन. इसके सिवा कुछ और एडजस्टमेंट है नहीं. चलो बैलेंस ढूंढते हैं. देखो कैपिटल ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है. दिस इज टू बी रिटर्न ऑन लायबिलिटी साइड. ये लायबिलिटी यहां पे देखते हैं. इफ यू चेक विच साइड इज हेवियर, यहाँ पे 60 70 77,000 समथिंग है. क्रेडिट इज मोर. इन केस ऑफ मोहन डेबिट इज मोर. सन के केस में क्रेडिट इज मोर. देखते हैं कितना क्रेडिट है. 25 तो मुझे दिख रहा है. 25 फिर 6 प्लस 5 11 1 कैरिड. 6 11 11 प्लस 8 7 18 1 carried 6 7 78,125.
माइनस दिस, सो 5 तो चाहिए मुझे, 5 प्लस 7 12 आ जाएगा, 1 कैरिड, 6 9 9 प्लस 2 11, 1 carried, 23 24 24 29 69 69 69, मतलब मुझे यहाँ पे 69, हाँ बराबर। इज इट करेक्ट? चेक करो, 9275 9725 is the balance. Okay, are you sure? 9275 9725, are you sure? Let me check. 5 2 6 plus 5 11, 1 carried, 6 11 6 7, ये परफेक्ट है। 5 5 प्लस, अच्छा कैसे आएगा रे? 9275 कैसे आएगा? किसने 9725 लिखा है? मेरा बराबर है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। आगे किसी ने अलग आंसर लिखा है। हाँ, इट शुड बी 9275, मेरा परफेक्ट है, वही बोला। क्या क्या गलत हो गया? 45 900, डेबिट इज 45 900। 0 0 0 चाहिए। 5 प्लस 5 10, 1 carried, 8 8 plus 2 10, 10 plus 9 19, 1 carried, 29 34 34 plus 35 35, is it 11,000? राइट, चेक करो, 11,900, 11,900 परफेक्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनरली नहीं कैलकुलेशन रॉन्ग होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हैंडराइटिंग बहुत छोटी निकालनी पड़ती है और एक के नीचे एक अमाउंट आना बहुत चैलेंजिंग है। अगर वही व्हाइट बोर्ड रहता है प्रॉपर क्लास में तो वो हैंडराइटिंग भी बड़ी रहती है और जल्दी समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना। सो इन केस ऑफ सन, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट, तो एक क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लाइबिलिटी में लिख देंगे। मतलब सन सन जो पार्टनर है ना, he has invested 12,25,000 into business। अगर फर्म बंद हो जाती है, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो फर्म को पे करना होगा सन को। फर्म इज सपोज टू पे टू सन 12,25,000 टुवर्ड्स कैपिटल एंड 9,275 टुवर्ड्स द करंट अकाउंट। फर्म इज सपोज टू पे टू सन टू अमाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल एंड क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, ये दोनों पे करने होंगे। बट मुन के केस में फर्म इज सपोज टू पे 6,50,000 टुवर्ड्स कैपिटल, बट उसका करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है। व्हाई डेबिट बैलेंस? बिकॉज डेबिट इज हेवियर देन क्रेडिट, दिस इज डेबिट बैलेंस है, ये असेट में लिखा जाएगा। मतलब अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है, इंसॉल्वेंट जाने दो, अगर फर्म बंद होती है, इंसॉल्वेंट नहीं बोलना चाहिए मैंने, थोड़ा अलग आ जाएगा उस केस में। अगर फर्म बंद करते हो आप किसी कारणवश, तो इन दैट केस यू हैव टू पे 6,50,000 टू मून एंड यू हैव टू रिकवर 11,900 फ्रॉम मून। तो आप उसको नेट पे करोगे, बोलोगे देख करंट अकाउंट के लिए तेरा डेबिट बैलेंस है, तो तू हमें 11,900 दे दे और हम तुझे 6,50,000 देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो वन विल आस्क यू, बट राइट, हमें वो समझ में आना चाहिए। आई डोंट नो, ठीक है, देखते हैं। सो
माइन इज करेक्ट, यू कैन चेक 11,900। किसी ने और एक अलग आंसर दिया है 11,900 एंड यहाँ पे मेरा 9275 मेरा परफेक्ट है। ठीक है, आगे आगे किसी ने अलग आंसर दिया है, प्लीज चेक। आपने कुछ तो टाइप लाइक राइटिंग टाइम गलत किया होगा। 11,950 नहीं है मैडम, बहुत कॉमन सेंस चीज है। यहाँ पे 50 प्लस 50, यहाँ पे 100 हो रहा है। 50 प्लस 50 100 हो रहा है, तो 50 आने की जरूरत ही नहीं है, जीरो ही बचेगा। ठीक है, आगे इफ यू प्रिपेयर, ये किसके हिसाब से था? फिक्स कैपिटल। अब हमें करना है कैपिटल्स एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए कैपिटल अकाउंट। दिस इज लाइक खिचड़ी, मैंने बोला भी था, दिस इज अ खिचड़ी, सब इसमें मिक्स होगा। देयर इज नो सेपरेट करंट अकाउंट जिसमें हम कोई ट्रांजैक्शंस अलग से रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। इसमें सब जो भी है ना, सब एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। देखते हैं। सो सन एंड मून एंड फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं होता है। सो अगर किसी ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, तो वो ट्रायल बैलेंस फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से होगा। अगर खाली कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट है, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस रहेगा। वो इन दैट मेथड हम फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे होंगे। कैपिटल्स बाय बैलेंस वर्क डाउन 10 lakhs एंड 5 lakhs, ये कैपिटल्स थे उनके इनिशियली। देन दे एडेड कैपिटल बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी रहेगा। इसने 2,25,000 लाया, 2,25,000 लाया, और इसने 1,50,000 लाया। हमें उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, क्रेडिट। देखो एक करंट अकाउंट में क्रेडिट रहेगा 55,625 एंड 28,750। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी देनी है 15,000। क्रेडिट को क्रेडिट किया जाएगा, ज्यादा सोचो मत। 15,000 यहाँ पे क्रेडिट मतलब P&L में डेबिट। नेक्स्ट कमीशन 7,500 एंड 5,250 बाय कमीशन। यहाँ पे क्रेडिट है मतलब P&L में डेबिट है, वो सोचना चाहिए अब आपको। उसके बाद ड्रॉइंग्स 22,500 15,000। टू ड्रॉइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,350,900। टू लॉस, नेट लॉस। नेट लॉस कैपिटल कम करता है कैपिटल के डेबिट पे। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड करता क्रेडिट पे। 45,000 30,000। Therefore टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखते हैं, मैं ओरली भी बोल सकता हूँ, लाइक आई नो इसका 12,25,000 क्रेडिट बैलेंस था कैपिटल में, और करंट में 9,275 था, दोनों मिला के 12,34,275। यस 12,34,275
9,275। यहां पे कितना बैलेंस होगा ठीक से देखो। ठीक है, यहां पे बैलेंस कितना होगा? 6,50,000 क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल में और करंट में 11,100 डेबिट बैलेंस है, तो नेट हो जाएगा। तो 6,50,000 से 12,000 गए, 6,38,000 प्लस 100। है क्या? चेक करो आंसर बराबर। 12,34,275, 6,38,050। क्यों रहे 050? 050 कैसे आया? 5 lakhs, 1,50,000, 28,750। हाँ 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 हाँ, इधर इधर रॉन्ग लिया उन्होंने फिर। कमीशन इज रॉन्ग हियर। मॉड्यूल में चेंज करो, चलो टेक्स्ट बुक में चेंज करो। इट इज 5,250 है, 5,250, इसलिए उनका 50 इसका डिफरेंस है। करो चेंज। ठीक है सर, हाँ वही मैं बोल रहा, मैं चेक ही कर रहा था। उन्होंने 5,200 लिया है, दे शुड हैव टेकन, लिख लेना वहां पे। चलो राउंड करो आपके टेक्स्ट बुक में, 5,250 एंड देयरफॉर दिस विल बी 50 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब ये आएगा 100। ठीक है, आगे है ना बुक्स में एरर्स, ऐसा नहीं कि नहीं, नहीं अच्छा। ठीक है, अच्छा और कुछ है? लेट मी चेक। अरे प्रिंटिंग एरर बहुत रहेंगे, दिस इज फर्स्ट एडिशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इतने सारे रहेंगे तो आप पागल हो जाओगे। कि क्या लिखा है किसने अभी? हम्म, क्या लिखा है? अच्छा ये कैरी डाउन होना चाहिए। ठीक है करो चेंज। ऐसे आपको एरर्स 100 मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमें 4-5 अभी तक एरर्स मिले, आगे जाना है हमें बहुत। हम्म, बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल फाइनल अकाउंट्स, पहले ये देखो। मैंने उस दिन भी शायद से ओपन किया था बट बाद में मैंने डिलीट कर दिया था।
ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कहाँ का भी हो. यू शुड बी इन पोजिशन टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए. कहाँ से भी क्वेश्चन दे दो, एक बार आंसर समझ में आएगा तो क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन किसका है, कहाँ का है. इफ यू लर्न कंसेप्चुअली, आपको हर चीज आएगी, हर चीज आएगी. दैट इज पॉसिबल. कहां से भी क्वेश्चन आ जाए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता. ध्यान देना. ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 16. अच्छा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मींस ऑब्वियसली देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस बट डाउन नहीं रहेगा. विथ कैपिटल्स ऑफ 30,000 20,000. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ. तो अगर 500 पर मंथ सैलरी, तो पूरे साल की उसकी सैलरी 6,000 होगी. एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. हमें उनके कैपिटल बैलेंसेस पे 6% का इंटरेस्ट देना है. इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. सैलरी टू बी is an expense. Interest on capital is also expense. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. They have given you PSR. जो भी प्रॉफिट बचेंगे हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. On during 2016, उस ईयर में the firm earned profits before charging salary to A and interest on capitals to 25,000. These profits are before salary and interest on capital. Profits are before salary and interest on capital. Salary and interest on capital is an expense. Profit before expense, वो final profit रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. They are not final profit, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी नहीं माइनस की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया. इंग्लिश आनी चाहिए. बिफोर चार्जिंग, चार्जिंग मीन्स डिडक्टिंग. Charging expenses means deducting expenses. Expenses are charged against revenue to find out profit. Expenses are charged to P&L. Expenses are charged against revenue. मतलब revenue से वो minus होते हैं to find out net profit. ठीक है, उन्होंने दिया है the firm earned profit before deducting salary to be and interest on the capital 25,000. So these profits are before salary expense, before interest expense. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एक्सपेंस माइनस करेंगे और फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे वो प्रॉफिट हम 5:3 रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर A withdraw ₹8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. Prepare capital accounts of A and B. I will follow, right? I will follow. आप फ्लक्चुएटिंग करने तो फ्लक्चुएट, नथिंग इज गिवन, फ्लक्चुएटिंग करते हैं. ठीक है, if nothing is mentioned, it is fluctuating. So interest on capital, A and B. अच्छा देखते हैं. इनका 30,000 है और उनका ईयर जनवरी से दिसंबर है, बिकॉज उन्होंने बोला ड्यूरिंग 2016. 16-17 नहीं लिखा है. 16-17 लिखा तो अप्रैल से मार्च. ड्यूरिंग 2016 लिखा है, मतलब दिस इज जनवरी से दिसंबर ईयर. 30,000 पे ऑन ओपनिंग कैपिटल लिखो. for 12 months. 30,000 पे 6% for 12 months. For 12 months. देखते हैं क्या है. 30,000 का 1% आता है. 6% ढूंढना है ना, 1% ढूंढो. 1% लास्ट के 2 डिजिट हाइड करने का. 30,000 के लास्ट के 2 डिजिट हाइड करो. 300 इज 1%. 300 इज 1%, तो 6% रहेगा 1,800.
एंड इसका कितना कैपिटल था 20, 6% फॉर 12 months, 1% is 200, 6% is 1200 and yearly है. Is there any addition वगैरह? No. So these are final interest. Now final calculation of final profits. फाइनल प्रॉफिट्स, ठीक है, देखते हैं. प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्टिंग, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग और डिडक्टिंग. चार्जिंग मतलब डिडक्टिंग. डिडक्टिंग सैलरी एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना है बोलो? 25,000 लेस सैलरी. अब डिडक्ट करो. अगर आपने प्रॉफिट विदाउट सैलरी ली है तो इनकरेक्ट प्रॉफिट है. एक्सपेंस तो लेना चाहिए. सैलरी कितनी है? 500 पर मंथ, 6,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,800 प्लस 1,200, टोटल 3,000. सो ये जो प्रॉफिट्स थे 25,000, उसमें से सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया था. अब माइनस करो तो आपको फाइनल प्रॉफिट बोलेंगे. देयरफॉर प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. 9 माइनस होगा तो 16,000 बचेगा. एंड ये किस में बटने वाले? ए एंड बी में. ए एंड बी किस रेशियो में? 16,000 इन विच रेशियो? 5:3. 8 से डिवाइड करना होगा. 5 + 3 8, 8 से डिवाइड करोगे. 16,000 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 2,000 आएगा. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 ए को मिलेगा. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 बी को मिलेगा. सो भले ही उन्होंने आपको 25,000 प्रॉफिट्स दिए हैं, those profits are before deducting salary expense and interest on capital expense. तो आप विदाउट एक्सपेंस प्रॉफिट कैसे फाइनल करोगे? पहले एक्सपेंस माइनस करो और फिर फाइनल प्रॉफिट आएगा. ठीक है, चलो अब हम कैपिटल अकाउंट्स करते हैं. टू पार्टनर्स, ए एंड बी. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं. क्वेश्चन में लिखा था दे स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 30-20. इसने ए ने कैपिटल दिया 30,000 का, बी ने कैपिटल दिया 20,000 का, तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो गया बाय कैश और बैंक. आपको जो लेना है ले लो. कैपिटल, अब ए का कैपिटल 30 हो गया, बी का कैपिटल 20 हो गया. फिर आगे देखना है, हमें बी को सैलरी देनी है 6,000 की. तो देखो कैपिटल में ऐड होगा एंड प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस हो जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा. देखो 6,000 का एक्सपेंस आपने बुक किया है. फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है.
दे आर गिवन अस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ढूंढा है 1800 1200, इसके कैपिटल में 1800, इसके कैपिटल में 1200, ऐसे 3000 का एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। फिर आगे कुछ बोला है क्या, देयर दे विड्रॉ 8000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर डोमेस्टिक पर्पस, उनके ड्रॉइंग्स है 8 एंड 10, 2 ड्रॉइंग्स, कैपिटल माइनस होगा, और मैं कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग। 8000 ए का, इसका 10,000 से कैपिटल माइनस होगा, हमें प्रॉफिट्स देने, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है बाय नेट प्रॉफिट। ए को कितना मिलने वाला है 10,000, बी को कितना मिलने वाला है 6,000, and therefore two balance carried down. $36, $46, $47,800, 47,800 से अगर आप 8,000 माइनस करते हो, इट विल बी 39,800। बी के केस में 27,200, अगर 27,200 से इफ यू डिडक्ट 10,000 यू विल गेट 17,200। बोथ केसेस में क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, देयरफॉर ये क्रेडिट बैलेंस है, जिसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे, जिसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे। चेक करो आंसर बराबर है क्या। सैलरी किसको दे रहे हो आप, सैलरी, सैलरी किसको दे रहे हो, तो क्या क्वेश्चन में था। अच्छा, बी इज इंटाइटल टू सैलरी, मैंने ए के इसमें लिख दिया, उन्होंने लिखा है बी इज इंटाइटल टू सैलरी, तो मैं थोड़ा शिफ्टिंग करता हूं, ए के इसमें लिख दिया, सैलरी है इधर आएगा, सो इसका 6,000 से कम हो जाएगा, दिस विल बी 41,000, दिस विल बी 41,800, सो यहाँ पे आ जाएगा 33,800, इसका 6,000 से इंक्रीज होगा, मतलब ये 33 हो जाएगा। माइनस 10,000, 23,200। अब तो आंसर सेम आना चाहिए, वो क्या, वो मैंने ए है या बी है, मैंने ए केस में लिख दिया, सो 33,800, 23,200। आंसर देखो, इसका कैपिटल 30,000 था, प्लस उसको 1,800 का इंटरेस्ट मिला, 10,000 का प्रॉफिट में शेयर मिला, इसका कैपिटल 41,800 हो गया, माइनस 8,000 की ड्रॉइंग्स, इतना बैलेंस है जो उन्होंने ब्रॉट डाउन किया। इसका 20,000 का कैपिटल था, 6,000 की सैलरी मिली, 1,200 का इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ऑल दिस विल इंक्रीज द कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, शेयर इन द प्रॉफिट, एवरीथिंग विल इंक्रीज द कैपिटल। उसका कैपिटल हो गया 33,200, उसमें से 10,000 ड्रॉइंग्स है, तो उसका कैपिटल रहेगा 22,300, जो आगे आ जाएगा। दिस इज आंसर, लिख लेना चाहिए तो। चलो जल्दी करो, मैंने एग्जांपल दिखाया, व्हाट डू यू मीन बाय बिफोर चार्जिंग सम एक्सपेंसेस, मतलब बिफोर प्रॉफिट्स इफ आर गिवन बिफोर चार्जिंग सम एक्सपेंसेस, मतलब हमने एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए तो प्रॉफिट फाइनल रहेंगे क्या, नहीं, तो हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, ठीक है। लिखो, जिनको लिखना है जल्दी करो, लिखो जल्दी, दिस इज प्रैक्टिस, ठीक है। अरे ऐसे कुछ नहीं यार, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अलग अलग कैपिटल बनाए, कोई पूछ रहा है अलग अलग कैपिटल बनाए तो अलग अलग करने होते हैं क्या, नेवर प्रिपेयर टू डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स, यू डोंट हैव दैट मच टाइम,
ठीक है, मैं बोलता हूँ एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी। जल्दी करो, जिनको क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिखो, और ए आंसर है आपका। जल्दी करो, योर 2 मिनट्स। मीनवाइल मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल के रखता हूं, जल्दी करो। चलो, आई होप आपने लिखा होगा, ठीक है, एंड दिस वाज योर आंसर। क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है। 12th में डायरेक्टली प्रॉफिट देते हैं, यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये माइनस करने के पहले के प्रॉफिट है। हमने क्या किया, फिर वो माइनस किया। आगे कुछ अलग नहीं है, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। हाँ, वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं, हम P&L अप्रोप्रिएशन करते हैं, बट एट द एंड आंसर विल रिमेन सेम, सम विद सम चेंजेस। ठीक है, नाउ दिस इज एन एग्जांपल। ये मैं इस पे क्यों इतना ले रहा हूं, बिकॉज ये पूरे सिलेबस में यही करना है हमें। वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी वगैरह, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। हाँ, करो ट्राई एक बार। हम्म, शिल्पा एंड संजू, ओके आई विल, ओके किसी का क्वेश्चन है, समवन हैज रेज्ड द हैंड, सो आई विल अनम्यूट। यस मैम, बोलो। आदित्य मैडम बोलो। सर गलती से हो गया, सॉरी, फोन रखा था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, चलो गिव मी द आंसर। हाँ ठीक है, वो बी की सैलरी ना, हाँ चलो। Shilpa and Sanju are the partners with a capital of rupees 1 lakh and 1 lakh 60 on 1st January 2016 respectively. Shilpa introduced additional capital of 30,000 on 1st July and another 20,000 on 31st of October. मतलब शिल्पा ने इंट्रोड्यूस किया है, शिल्पा ने 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक 30,000 on 1st July and another 20,000 on 31st of October. Calculate interest on capital for the year ending 2016. So जनवरी से दिसंबर आपका ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। करो कैलकुलेट।
चलो, पिंग मी द आंसर. मेक इट फास्ट. करो ट्राई. अच्छा, किसी ने पिंग किया शायद से. गलत आना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करोगे ही नहीं ना तो प्रॉब्लम है. एंड इफ यू ट्राई, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ठीक है. अच्छा, मैडम व्हाई आई हैव टेकन, तुम लोग अगर यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 16, ईयर एंडिंग 16 मतलब क्या रहेगा फिर? 16-17 अगर ऐसे लिखा जाता है तो अप्रैल से मार्च. ईयर एंडिंग 15 ऐसे लिखा है तो जनवरी से दिसंबर. क्वेश्चन पढ़ो ना, मैं मन से नहीं बोलता, मैं वहां पे देखता हूँ क्या लिखा है. उन्होंने वहां पे लिखा है कि ईयर एंडिंग 16, सो ऐसे ईयर एंडिंग 16 अगर उनको लिखना होता तो उन्होंने बोलता ईयर एंडिंग 15-16, तो मैं मानता कि 31 मार्च 16 विल बी द ईयर एंडिंग. ठीक है, आगे. सो देखो, कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या नाम है उनका? हाँ, शिल्पा एंड संजू. पहले तो ओपनिंग कैपिटल पे ढूंढो. ऑन ओपनिंग कैपिटल इसका 1 लाख पे 9% फॉर द एंटायर ईयर, 9,000. इसका 1,60,000 पे 9% फॉर द एंटायर ईयर, 12/12. Is it 14,400? Then on additional capital, हाँ, उन्होंने लिखा है शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 1 जुलाई. 1 जुलाई 16 को 30,000 डाला, उस पे 9% फॉर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 months. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 months.
So that will be so it will be 1350 1350 आगे। और उसके बाद एक और ऐड किया है 31 अक्टूबर को किया है 20,000 एडिशन है 9%। अक्टूबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर एंड पे नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स 2/12 2/12 ये 6 आ जाएगा 6 मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, देयरफॉर ये 300 हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका रहेगा 10,650, इसका 14,400। चेक करो बराबर है क्या? जिनका आंसर आया है वो लोग चेक करो। अरे 10,650 है क्या? यस। एंड इसका 14 कैपिटल बैलेंस कितना रहेगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। इसका कैपिटल कितना था? 1 लाख। शिल्पा का 1 लाख था। ठीक से पढ़ो, या ओरली निकाल सकते हो रे। 1 लाख इसका कैपिटल था, इसने और 30,000 डाले 1,30,000 हो गए, और 20 डाले 1,50,000 हो गए, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10,650। सो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,60,650। इसका कैपिटल कितना था? 1,60,000 था, प्लस उसको इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 14,400, तो टोटल उसका हो जाएगा 1,74,400। ठीक है, पहला मैच नहीं हो रहा है, मतलब आपने कैलकुलेशन कैसे किया उस पर डिपेंड करता है ना। देखो 9,000 ओपनिंग पे, एडिशनल पे 1,350 300 10,650 10,650। यू कैन सी माइन इज करेक्ट। मैं आपको वही बोलता हूं, अगर खुद होके ट्राई नहीं करोगे ना तो कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगा। टुडे आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू कैन गिव मी द आंसर, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूं, मैं खुद सॉल्व करता हूं, रॉन्ग तो रॉन्ग। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ठीक है, लेट्स सी। अब जिनका रॉन्ग गया, कहां पे रॉन्ग है उनको सोचने की बात है। एरर समझ में आ गई, दैट्स मोर, दैट इज द बेस्ट ना, इससे और क्या चाहिए। ठीक है, आगे 10,800 वाले मुझे नहीं पता कैसे आया 10,800। आगे ठीक है, देखते हैं। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कौन सा ले सकता हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन देखो। आप बोलोगे सर आप हमारे सिलेबस के बाहर जा रहे हो। देखो, ये एक कंसेप्ट पता है तो उसको आप कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो ना। डेवलप, खुद को डेवलप कब करोगे। ठीक है, इफ ए फर्म प्रेफर्स capital account to be shown at the amount introduced by the partners as a capital in the firm, if firm prefers capital accounts to be shown at the amount introduced by the partners as a capital in the firm, मतलब वो बोलते हैं कि जो भी हमने पहले कैपिटल लाया था उस पे ही कैपिटल दिखना चाहिए। मतलब जो हमने कैपिटल लाया था उस पे ही कैपिटल दिखेगा, मतलब उनको वो फिक्स रखना है। सो बाकी सब एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे वो पूछा होगा उन्होंने। देन द इंटरेस्ट फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स। अच्छा इसी लिखा है सैलरी की एडजस्टमेंट, राइट, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट, प्रॉफिट्स आर मेड इन। बोलो पिंक करो ABC, किस कहां पे करोगे ये? व्हाट यू थिंक? चलो जल्दी। क्वेश्चन सेज इफ यू वांट टू मेंटेन कैपिटल एट द ओरिजिनल कैपिटल यू ब्रॉट इन, जो आपने पहले कैपिटल डाला वही रखना है, कैपिटल कैपिटल को चेंज नहीं करना है। तो ये सब एडजस्टमेंट किस अकाउंट में करोगे? करंट अकाउंट। इन द absence of any agreement, partners are liable to receive interest on their loan. In the absence of any agreement, अगर डीड साइलेंट है तो हमें उनके लोन पे कितना रेट मिलता है? चलो करो पिंग मुझे, ये सबको पता है। It is 6% per annum. The relation between the persons who have agreed to share profit and losses carried by all or any one of them acting for all is known as, क्या आंसर है? Is called as a partnership. Perfect. 4. Firm has, अच्छा, ignore, that is not your part. Question number 5. In the absence of agreement, partners are entitled to ABC. अगर एग्रीमेंट नहीं है उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन्स मिलेगा क्या, कमीशन मिलेगा या सैलरी मिलेगा? क्या मिलेगा? इवन इफ देयर इज ए नो एग्रीमेंट, उनको 6% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एग्रीमेंट में आपने बोला 10% तो 10% मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में आपने लिखा है 4% तो 4%, बट एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो 6%। Partners are supposed to pay interest on their drawings only when and by the, only when provided by the agreement agreed by the partners. Yes, agreement provided in the agreement है, agreement सबको साइन करनी होती है, और agreed by partners both will do, both will do. अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं ना पार्टनरशिप में, आप ओरली भी डिसाइड कर सकते हो। सो एग्रीड बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट। अच्छा दिस इज नॉट योर क्वेश्चन। ठीक है, ये करने में प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग्स के पैटर्न अलग ढंग से दिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। कुछ इंट्रोडक्शन में से मिस नहीं हुआ है ना? बस कंफर्म करो। देखो, दिस इज प्रो फॉर्मा ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दिस इज देयर ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हो तो कैपिटल में शो क्रेडिट बैलेंस और कैपिटल में शो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट ओपनिंग है तो क्रेडिट पे आएगा, अगर डेबिट बैलेंस ओपनिंग है तो डेबिट पे आएगा। सो कैपिटल में क्या ऐड हो गया? एडिशनल कैपिटल ऐड हो गया। एडिशनल कैपिटल वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, जैसे एडिशन साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, सैलरीज ऐड हो जाएंगे कैपिटल में, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में। माइनस क्या होगा? ड्रॉइंग्स माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा, लॉसेस माइनस होंगे, एंड फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। सो व्हाट इज अ क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल इज अ ओपनिंग कैपिटल। ध्यान देना, मैं लिखता हूं चाहिए तो, इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल बराबर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन प्लस प्रॉफिट।
ये सब चीजें ऐड होंगे कैपिटल में। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब कैपिटल में ऐड होंगे। एंड माइनस होगा ड्रॉइंग्स। तीन चीजें माइनस होंगी, ड्रॉइंग्स, दूसरा माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड तीसरा माइनस होगा अगर लॉसेस है तो they will reduce the capital. So this is credit side of capital, this is debit side of capital. ठीक है। Then देखो पी एंड एल का फॉर्मेट मैंने बोला था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पे आया, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे डेबिट में आया कैपिटल के, तो पी एंड एल के कहां पे आ गया, क्रेडिट, बिकॉज इट इज इनकम। ये आपकी इनकम है, समझा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आया, कैपिटल के क्रेडिट पे आ गया, मतलब पी एंड एल के कहां पे होना चाहिए, डेबिट। सैलरी कहां पे आ गई, सैलरी टू पार्टनर, कैपिटल के क्रेडिट पे आ गया, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो पी एंड एल के कहां पे, देखो डेबिट पे। कमीशन कहां पे, पी एंड एल के डेबिट पे, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसेस, दीज आर एक्सपेंसेस। जस्ट अ सेकंड, लिख लो तब तक। ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, सो ये होता है, इसलिए फाइनल अकाउंट्स में जब हम अब ऑब्वियसली हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट क्या रहती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट इज इनकम, इनकम में ऐड करेंगे पीएनएल के क्रेडिट पे, एंड कैपिटल में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट करेगी, या सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे पीएनएल के डेबिट पे, एंड कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल के क्रेडिट पे। नेक्स्ट, वो करंट अकाउंट का फॉर्मेट था, ये सब कर दिया हमने। अच्छा, एक फॉर योर इंफॉर्मेशन लिख लेना, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन। राइट, नॉट फॉर एचएससी, एचएससी के लिए नहीं है। सो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। If drawings are at beginning of each month, interest on drawings is for 6.5 months, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6.5 मंथ्स के लिए लिया जाता है। If drawings are at the end of each month, it is calculated for 5.5 months. If the drawings are at beginning of each quarter, each quarter,
each quarter मतलब 12 plus 3 divided by 2. 12 plus 3 is 7.5 months. And if drawings are at end of each quarter, end है मतलब 12 माइनस लेना होगा, क्वार्टर मतलब 3 divided by 2, 4.5 months. This is just for your information. ठीक है, ये एचएससी के लिए नहीं है, एग्जाम्पल ऐसे लिखा है. X draws rupees 3,000 per month at beginning of each month. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum. So मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी पता है आपको? एनुअल ड्राइंग्स विल बी, ईयरली ड्राइंग्स कितनी होगी? आप 3,000 एवरी मंथ निकाल रहे हो ना, सो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स 36,000. सो मैं 36,000 पे एट द रेट ऑफ गिवन रेट 12%, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आई विल कैलकुलेट फॉर 6.5 मंथ्स. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो भी आएगा आई विल शो यू हियर. निकालो कितना आएगा, कोई मुझे बोल सकता है? 36,000 का at the rate of 12% for 6.5 months. $36,000 2340 something. चेक 2340 है क्या? हाँ, अब मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूं, ध्यान देना. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, अच्छा हाँ, ध्यान देना, चेक करो बराबर आंसर आएगा. ठीक है, मुझे सामने ले लो तो जल्दी समझ में आएगा. रुको, ठीक है. 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बराबर. सो सपोज मैं लेता हूं डेट ऑफ ड्रॉइंग्स. एज्यूम योर ईयर इज फ्रॉम अप्रैल से मार्च चलेगा. सो 1 अप्रैल सपोज 2019, फिर 1 मई 2019. होपफुली ये समझना उसने लेना चाहिए.
देखो एक्सेल होशियार है, उसने बराबर एक एक मंथ ले लिया, मैंने 2 डाल दिए, वो पैटर्न उसने पिकअप किया। देखो मैंने क्या किया, इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सेल मेक्स यू एक्सेल इन योर लाइफ। मैंने यहाँ पे 2 तारीख लिख दे, सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया, एक्सेल समझता है वो पैटर्न, ठीक है। इस मतलब एवरी मंथ के बिगिनिंग में अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, $3,000, right? So total drawings is equal, sum is equal to range. 36,000 is total drawings. आगे ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स ड्रॉइंग्स और मेड, कितने मंथ्स आपने ड्राइंग्स की थी, कितने मंथ्स। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपने 1 अप्रैल से मार्च एंड तक 12 मंथ्स, दिस इज 11 मंथ्स, दिस इज 10 मंथ्स, जुलाई से मार्च एंड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 months. Are you getting my point? So आपने 1 मार्च को 3,000 निकाले, 1 मार्च को 3,000 निकाले, तो एक मंथ के लिए निकाले ना। जो 1 फेब को 3,000 निकाले वो फरवरी मार्च 2 मंथ्स के लिए, जो 1 जनवरी को 3,000 निकाले वो जनवरी फरवरी मार्च के लिए 3 मंथ्स के लिए, जो 1 दिसंबर को निकाले दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स के लिए। सो हमने कितने मंथ्स पैसे यूज किए ये मैंने निकाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने मंथ्स हमने वो पैसे यूज किए। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो ये 3,000 पे 12%, 3,000 पे 12%, बट हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, 12/12। सो ये जो 3,000 है वो 12 मंथ्स यूज हो गए। 3,000 अप्रैल 1 से 31 मार्च तक 12 मंथ यूज हो गए, उस पे 360 का इंटरेस्ट, इस पे इस 3,000 पे 12%, बट कितने मंथ्स के लिए, 11, बिकॉज वो 11 मंथ्स यूज हुआ है। 330 मैंने कॉपी किया, अपने आप आ जाएगा। 2340 इज इंटरेस्ट, एंड यू कैन चेक हमारा आंसर कितना था। 2340 दिखेगा आपको, एक्सेल क्या दिखा रहा है, 2340 आ गया। सो ये जो मैंने शॉर्टकट लिया है 6.5, उसका लॉजिक क्या है मैं यहां पे समझाता हूं, ध्यान देना एवरीवन। सो मैंने ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने क्या किया, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, ये 330 कैसे आ गया। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12/12, 11% है, सॉरी वो 11% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। इस पे कैसे निकाला, इस 3,000 पे, 3,000 पे 12%, उधर मैं चेंज करता हूं 12% फॉर 10 मंथ्स। ये कैसे निकाला होगा आपने, 3,000 पे 12% फॉर 9 मंथ्स। ये कैसे निकाला आपने, 3,000 पे 12% फॉर 8 मंथ्स। हाँ ये फॉर 7 मंथ्स, ये 6 मंथ्स, इस पे इस 3,000 पे, ये 3,000 पे 5 मंथ्स का निकाला होगा, नीचे वाले पे 4 मंथ का। देखो शॉर्टकट मिलेगा डायरेक्टली आपको, इफ योर गुड ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में आते तो भी चलेगा, बट ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मिल गया ये। सो
इसका आंसर 360 है, इसका आंसर 330 है, इसका आंसर 300 है, इसका आंसर 270, लाइक दैट। इसका लास्ट वाले का आंसर 30 और हमने इसकी सम ले ली। तो मुझे इन सब की टोटल लेनी है। दिस इज प्लस, ठीक है, मैं ऐसे लेता हूं, मतलब आपको थोड़ा क्लिक होगा। दिस इज प्लस प्लस, ऐसे मैंने प्लस करते जाऊंगा इन सब का इंटरेस्ट, बराबर। तो व्हाट इज अ कॉमन, व्हाट इज अ कॉमन देखते हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस, 3000 हर जगह से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, 3000 मैं हर जगह से कॉमन निकाल सकता हूं। फिर मैं 12% हर जगह से कॉमन निकाल सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1/12 कॉमन निकाल सकता हूं। तो अंदर बचा क्या, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 3000 हर जगह से कॉमन आ गया, 12% हर जगह से कॉमन आ गया, एंड 1/12 हर जगह से कॉमन आ गया। तो इफ यू टेक द टोटल ऑफ 1 to 12, the total is 78. Total is 78. So now I can also write like this, 1 to 12 की टोटल 78। ठीक है, देखते हैं ये मल्टीप्लीकेशन में। देखो, नाउ आई विल डिवाइड 78, उसको फ्रैक्शन कर दूंगा। कैसे 78 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ ड्राइंग्स में। सो कितने ड्राइंग्स थे मेरे, 12। तो 78 को मैं 12 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख दूंगा। देखते हैं, 78 को अगर मैं 12 में डिवाइड करना है तो आई विल से 6.5 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखना होगा। देखो 78 को आई कैन ऑल्सो राइट 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रीशफल करता हूं। दैट इज, कैन आई ऑल्सो राइट, मैंने यहां से 12 निकाला और मैंने यहां पे 12 मल्टीप्लीकेशन में डाल दिया। इसको एक ब्रैकेट करता हूं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 एनुअल ड्राइंग्स 12%, और इसको 6.5 को मैं यहां पे 1 की जगह लिख सकता हूं ना। तो व्हाट इज माय फार्मूला, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। चेक करो, ये वाला जहां पे कर्सर है 36,000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। देखो यहाँ पे भी 3000, 36,000, सॉरी उसको थोड़ा, हाँ 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 6.5 मंथ्स के लिए निकाला डिवाइड बाय 12। एवरीथिंग इज प्रूव्ड मैथमेटिकली, समझा। सो इसलिए ये जो मैंने लिख के दिया है ना, ये वाला यू कैन गो एंड चेक एट होम। आप डेट चेंज करो, यहां पे डेट चेंज करो। ठीक है, इसको 1 अप्रैल की जगह ले लो 30 अप्रैल, फिर 31 मई। अगर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस यार, एवरीथिंग इज कॉमन सेंस। एंड ना, एंड ऑफ ईच मंथ है तो क्या रहेगा। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, एक्सेल लेना चाहिए। देखो अपने आप बराबर ले लिया, एंड ये अप्रैल 2020 इज अ लीप ईयर, तो उसने बराबर 29 लिया है। तो अब हमें ये मंथ्स चेंज हो जाएंगे हमारे, क्यों, बिकॉज 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स आते हैं। बिकॉज अप्रैल का खत्म हो गया ना, अप्रैल नहीं लेंगे। सो मई से मार्च, इसके 10 मंथ्स लेंगे, इसके 9 मंथ्स लेंगे, इसके 8 7 6 5 4 3 2 1, इसके 0। सो इसकी सब टोटल आ जाएगी 66। एंड इफ यू रिमेंबर, मैं क्या करता हूँ, 78 जो मेरी सब टोटल आई इस मंथ की, इस पीरियड की, इसको मैं नंबर ऑफ ड्राइंग्स में डिवाइड करता हूँ। 78 डिवाइड बाय 12, 12 टाइम्स ना, तो यहाँ पे भी 12 टाइम्स है। 66 को मैं 12 टाइम्स से डिवाइड करूंगा।
तो वी विल गेट नंबर ऑफ मंथ्स 5.5 जो मैंने यहाँ पे लिखे है. इफ इट इज एट द एंड ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट फॉर 5.5. एवरीथिंग इज प्रूव्ड. दिस इज व्हाट यू शुड लर्न. यू मस्ट हैव दैट एटीट्यूड. अगर आप खाली बुक में है वही कर रहे हो ना तो वो तो आना ही चाहिए. देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट कुछ अलग भी है. दैट्स इट. 5.5 आप यूज करना स्टार्ट करो. Sir, by making drawings by a particular partner, if his capital account becomes zero, so then will it, capital can be negative ना? Capital can be negative. किसने बोला capital होना ही चाहिए? मैंने आपको 5 essential elements of partnership बोले. There should be agreement. Second, there should be business, lawful business. तीसरा मैंने बोला कि they must be sharing the profits. बराबर. क्या क्या था? हाँ, 2 or more persons. Partnership should have 2 or more persons. Association of person. Agreement होना चाहिए. Legal business होना चाहिए. Sharing of the profits होना चाहिए. And fifth था mutual agency. कहाँ पे मैंने ऐसे बोला है कि कैपिटल के पार्टनरशिप के लिए कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए? कहाँ पे लिखा है क्या हमने? नहीं. Even if capital is negative or zero, there is no problem at all. चलेगा. ठीक है. हाँ, yes ma'am, you can. It could also be proved by AP. हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सो वही मैं बोल रहा हूँ जो मुझे समझ में आता है और जो आप लोगों को मैं जल्दी समझा सकता हूँ मैंने वैसे समझा है. ठीक है. सो गो एंड ट्राई टेक डिफरेंट डेट्स. लाइक एक पैटर्न ले लो. जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिया, यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ लिया. अगर आप क्वार्टर देखते हो, अब क्वार्टर घर पे ट्राई करो. क्वार्टर का आंसर क्या आएगा? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. मतलब 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई आएगा. 1 जुलाई के बाद नेक्स्ट ड्राइंग्स रहेगा 1 अक्टूबर. अक्टूबर के बाद 1 जनवरी. ऐसे 4 बार ड्राइंग्स होगी. क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. तो फर्स्ट ड्राइंग्स रहेगी 1 अप्रैल को. सेकंड ड्राइंग्स रहेगी 1 जुलाई को. तीसरी ड्राइंग्स रहेगी 1 अक्टूबर को. एंड फोर्थ ड्राइंग्स विल बी 1 जनवरी. ऐसे 4 ड्राइंग्स रहेंगे. आप नंबर ऑफ मंथ्स निकालो एंड वहां पे डिवाइड बाय 4 करना होगा. उनकी जो टोटल रहेगी ना डिवाइड बाय 4 करना है. व्हाई डिवाइड बाय 4? बिकॉज आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग्स. मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 12 किया था इफ यू रिमेम्बर. क्यों? बिकॉज मैंने 12 बार ड्राइंग की इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 किया. यहाँ पे भी मैंने 12 से डिवाइड किया था इस सम को बिकॉज मैंने 12 बार ड्राइंग्स की थी. समझ में आ रहा है? अगर मैंने 4 बार ड्राइंग्स किए तो आई विल डिवाइड बाय 4. बट देयर शुड बी ए फिक्स पैटर्न. एक सेम अमाउंट रहेगी. अमाउंट शुड बी सेम एंड पीरियड शुड बी सेम. तब ये जाके एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप खत्म हुआ. मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें डिस्कस की है विच इज इवन बियॉन्ड योर सिलेबस बट फॉर मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो मैं आपको खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि इवन यू अटेंड द लेक्चर्स रेगुलरली. जो मैं समझाता हूँ अगर वो समझ में आ रहा है यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. लाइक हमने आज 2 सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए. क्या है? कुछ नहीं है. बच्चे बोलते डिफिकल्ट है. नो, डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज आपने 12th में खाली 12th सीखा है. यू डोंट नो कंसेप्चुअली. खाली पता है यार इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए तो ट्राई टू अप्लाई द कंसेप्ट्स. ठीक है. सो 520 हुए. राइट. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. I will be starting with the final accounts and the adjustments and we will start solving the questions. ठीक है. That will be for 15 marks. गलती से भी मिस मत करना. Right? And if required, I may extend the lectures as well. Like आधा घंटा वगैरह मैं extend करूंगा. ठीक है. So on this note, I will end today's lecture. जितने भी chat box में doubts है मैंने सब doubts solve किए हैं. ठीक है. ठीक है. या थैंक यू. किए मैंने सब डाउट सॉल्व जो जो मुझे मिले. ठीक है. थैंक यू.